आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। Okay, so we are going to start the fourth unit, and some topic we have already covered in this unit, यानी कि like aluminium, copper, some properties we have already done through this. तो यानी कि major units यानी कि major content of the material science is included in the first three unit. Now we will move towards the fourth unit. So non-ferrous metals, as we have already discussed about the classification of engineering materials. So engineering materials is classified into three categories, which we have already discussed: metals and alloy, ceramics and glasses, and organic polymer. So we are not going to the much detail how this classification has been made and what are the different classification. So we are moving to the very first, metals and alloy. So metals and alloy, what are the metals and alloy, anyone? Metals and alloy further sub-classified into two categories: ferrous metals and alloy and non-ferrous metals and alloy. So this unit is related to the non-ferrous metals and alloy. Ferrous metals and alloy, we have already discussed about these ferrous metals and alloy: steel, cast iron, all these come under the category of the ferrous metals and alloy. So how these are manufactured, what are their properties, how we can how the steel can be heat treated, we have already discussed these things in the third unit. So non-ferrous metals and alloy यानी कि ferrous metals यानी कि which contain the high percentage of the iron, but the non-ferrous metals में क्या है, it consists only very small percentage or negligible percentage of iron, then are known as the non-ferrous. We have already discussed about this terminology and this concept in very first lecture. Okay, what is the metals and non-metals? So again I am not going to detail what are the non-metals, but non-metals are these consist of very relatively any very low percentage of iron, or we can say that the properties of the non-ferrous metals and alloy are not due to the presence of the iron, but due to the presence of some other element, some other metals like copper, aluminium, nickel, or mixture of all these. alloy है तो it generally के there is no pure form, 100% form में तो कोई होता नहीं है. So it consists the mixture of the 2 or 3 or 4 metals. So non-ferrous metals comes under this यानी कि under non-ferrous metals the following non-ferrous metals are shown here: aluminium, copper, magnesium, titanium, superalloy, refractory materials, noble metals, nickel, tin, lead, zinc. So these are the different non-ferrous metals and their alloy. So in your syllabus we have the aluminium, copper and zinc. So we will be zinc or nickel. So we will be discuss about what is the aluminium and what are the duralumin in your syllabus, why alloy in your syllabus. So we will be discuss that also. Copper में brasses and bronzes के बारे में we will be discuss that also. And super bearing metals also is there. So we will be discuss the bearing metals also, or nickel metals. So this is all about the non-ferrous metals and alloy. So we will move the very first non-ferrous metals and alloy, that is the aluminium. So I hope each and everyone has shown the aluminium and what are the application of aluminium, you also aware about this. यानी कि if we are talking about तो look अगर looking की बाइस करें कि how the appearance of this aluminium metal is look, so generally ये कैसे कलर का होता है भाई? सिल्वर कलर का होता है. सिल्वर वाइट कलर की इसकी अपीयरेंस होती है. वी कैन आल्सो विजुअलाइज दिस थिंग बाय द नेकेड आइज. यस या नो? यस सर. यस सर. एंड I hope that most of you are using the aluminium components, and any useful item which is made of the aluminium anywhere, like कितना यूज करते हैं इसे? yeah? बाइक के पार्ट्स, बाइक के सर parts. बाइक के पार्ट्स, There are number इंजन of के parts. पार्ट्स. I'm not saying that there is no one application. It has the versatile application.
So we are not going to that very much detail. Just you must remember what are the properties of the aluminium. So there is no need to यानी कि whenever aluminium will come in your mind, you can easily write the number of properties related to the aluminium. So very first यानी कि after analyzing the aluminium, you can analyze that it is a very lighter material as compared to the copper, zinc and other metals. Yes or no? Aluminium is Yes, sir. aluminium is lighter and its density यानी कि density, if it is a lighter, it means its density is also low as compared to the steel. यानी कि here the comparison between the density of aluminium and steel has been shown. यानी the density of the aluminium is 2.7 gram per centimeter cube, while the density of the steel is say यानी कि approximately 7.9 gram per centimeter cube for steel. So in comparison to steel, it is generally के 1/4, its weight is 1/4 as compared to the steel. Yes or no? Yes, sir. So it is a lighter material and corrosion यानी कि it is a very good यानी कि this metal has a very good corrosion resistance. यानी corrosion resistance होता है electricity का and thermal conductivity का is a very good metal for conducting the electricity and thermal also. अदर थिंग्स व्हाट आर द, क्या होती है इसमें, और कुछ बताओ क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो तुम एनालाइज कर सकते हो एल्यूमिनियम को देख के. वी यानी कि एल्यूमिनियम वायर में भी यूज़ किया था. वायर में वी आर यूजिंग द एल्यूमिनियम एज ए वायर, यानी कि वी आर यूजिंग द एल्यूमिनियम इन वायरिंग, यानी कि वायरिंग के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं. इवन नाउ डेज जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, दे आल्सो कंसिस्ट आल्सो द वायरिंग ऑफ एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ द कॉपर. सम कंपनीज आर यूजिंग द बाइंडिंग of the यानी कि core binding of the motor, electric motor, which is made of the aluminium. So it is as a good conductor of electricity. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. And it can easily transmit the heat also. And other application, if we are showing, so it has the versatile application. Like we are using the aluminium nowadays for the door and window application. Even though furniture बनाने के लिए, even though aluminium is also using for the furniture application. Yes or no? Yes or no बताओ भाई. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And very versatile application of the aluminium in यानी कि throughout the industry is the its application in the automotive parts. यानी कि automotive parts के जो होते हैं उसमें इसका versatile application है. किसका? एल्यूमिनियम का. कि ऑल द जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, जितने भी हेलीक्राफ्ट हो गए और फाइटर जेट हो गए, इन मोस्ट ऑफ द यानी कि इन सभी में 90% पार्ट्स आर मेड ऑफ द एल्यूमिनियम. किसके बने होते हैं भाई? Aluminium. Aluminium के. Why the reason behind it? Reason behind it that we are making the most of the part, यानी कि most of the body as well as the engine part which is made of the aluminium, because it is very lighter in weight. And any यानी कि if we are making two aeroplane, one which is made of the aluminium and second one which is made of the copper, so differences you can easily analyze. Copper has a more weight as compared to the aluminium, वो heavy हो जाएगा. Similarly उसका engine भी heavy हो जाएगा. Now we required more force और more power to lift the vehicle. उसको उठाने के लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी. हाई पावर की हमें टर्बाइंस लगानी पड़ेंगी. समटाइम इस उठ तो जाएगा बट इट कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फ्यूल एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम. सो वो इकोनॉमिकली फिट नहीं है. इवन और बहुत सारे मतलब डीमेरिट है, कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में. सो अगर और फैक्टर को भी छोड़ दिया जाए, सो बट मेजर जो फैक्टर है उसमें ये है कि इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है इफ़ वी आर मेकिंग द एल्यूमिनियम और इफ़ वी आर मेकिंग द एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन बाय सम अदर मटेरियल. सो जनरली इन प्योर फॉर्म में हम जनरली एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं करते हैं. ड्यूरेलामीन और एल्यूमिनियम YLR जो होते हैं उसकी ड्यूरेलामीन की फॉर्म में हम इसको जनरली यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द एयरक्राफ्ट इंजन और एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने के लिए. एंड अदर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? FCC होती है. डक्टिलिटी बहुत हाई होती है. ब्रिटलनेस तो जीरो ही होती है लगभग. ब्रिटलनेस तो बहुत कम होती है इसकी बिकॉज इज अ वेरी हाई डक्टाइल मटेरियल. Okay, so these are some properties. So these properties will repeat again and again. So you must remember these properties whenever
whenever aluminium or its associated alloy, यानी कि its associated alloy में क्या हो सकता है कि when we will move the further classification of the aluminium alloy, जैसे कि specifically in your syllabus there are two types of alloy has been given, duralumin and Y alloy, यानी specifically it is mentioned in your syllabus. So duralumin also is the alloy of the aluminium and Y alloy is also the alloy of the aluminium. So both are the alloy of the aluminium. So the property of the Y alloy as well as the duralumin will remain the same as the property of the aluminium. उससे कुछ जो properties अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि it is very lighter weight होता है, electrical conductivity ज़्यादा होती है, thermal conductivity ज़्यादा होती है, good resistance to corrosion होता है, good resistance to wear होता है, non toxic होता है. So these property will remain also for the duralumin and Y alloy. So whenever we will discuss the duralumin or Y alloy or other associated material, और कोई भी तुमसे कोई भी if anyone will ask the property of any aluminium alloy, so these properties will remain same throughout all the alloy of the aluminium. बात समझ में आ रही नहीं आ रही सर? यानी कि अगर हमसे कोई एल्यूमिनियम या उससे एसोसिएटेड जो भी हमारे पास एलॉय है, जैसे ड्यूरेलामीन है, वाई एलॉय है, हिंडेरियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है तुम्हारे मैग्नीशियम, हिंडेरियम, वाई एलॉय, ड्यूरेलामीन, दीज आर द एल्यूमिनियम एलॉय. या अगर उसकी फर्दर अगर टेक्निकली हम पढ़ेंगे तो 1x कैटेगरी होती है, यानी कि 1x कैटेगरी होती है, 2XXX कैटेगरी होती है, 3XXX कैटेगरी होती है. सो वो अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, टेक्निकली क्लासिफिकेशन हो. सो if we are talking 5XXX or 7XXX or 7XXX, जो भी इसका क्लासिफिकेशन है, when we will be discuss about that. So all the alloy which will be discussed, हम डिस्कस करेंगे उनकी सारी की सबकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो रहेंगी. इसके एडवांस में उसमें हम क्या मटेरियल और एलॉय के साथ ऐड कर रहे हैं, उससे उसकी और प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाएगी. बट दिस प्रॉपर्टी विल रिमेन्स, ये तो प्रॉपर्टी रहेंगी उसमें, बट उसके साथ साथ और एडिशनल क्या ऐड हो जाएगा उसमें, वो हम कौन सा उसमें क्या कर रहे हैं, कौन सा यानी कि कौन सा मेटल को हम उसमें ऐड कर रहे हैं, कौन से हम नॉन मेटल को उसमें फर्दर और ऐड कर रहे हैं, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी में क्या इंक्रीमेंट होता है, वो तो ऐड हो जाएंगी. बट दीज आल्सो रिमेन कांस्टेंट, ये तो रहेंगी, क्योंकि एल्यूमिनियम तो रहेगा उसमें. सो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी तो रहेंगी, बट एल्यूमिनियम के साथ हम उसमें और क्या ऐड कर रहे हैं, उससे उसकी प्रॉपर्टी में क्या इनहेंस हो जाएगा, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर, आ रही है. भाई अगर हम एल्यूमिनियम से कोई जैसे कि ड्यूरेलामीन बना रहे हैं, तो ड्यूरेलामीन में क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा कि ड्यूरेलामीन में क्या कंपोजिशन होता है. एल्यूमिनियम तो होता ही होता है, उसके साथ उसमें कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है. सो कॉपर की प्रॉपर्टीज क्या है, जो कॉपर की थोड़ी प्रॉपर्टीज वो भी उसमें ऐड हो जाएंगी. व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एल्यूमिनियम तो रहेगा, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज तो रहेंगी उसमें, बट और क्या उसमें कॉपर की प्रॉपर्टीज और ऐड हो जाएगी, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा एज द प्योर एल्यूमिनियम. बात समझ रहे नहीं है? समझ लो. यस सर. यस सर. सो ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम के बारे में, तो सब लोग जानते हैं एल्यूमिनियम. अब इसके जो है एक ये यहाँ पे डायग्राम है, हो सकता है कि ये भी तुमसे कोई मालूम कर लें कि व्हाट इज द स्टैस डायग्राम, यानी स्टैन डायग्राम फॉर द एल्यूमिनियम. सो स्टैन डायग्राम फॉर द एल्यूमिनियम हैज बीन शोन हियर. दैट्स व्हाई मैंने ये इसलिए लिया है सो दैट वी विल गेट द आइडिया. ये जो तुम्हारा दिस वन इज द फॉर द एल्यूमिनियम. ये यहाँ पे ये पूरा एल्यूमिनियम के लिए, किसके लिए ये वाला जो स्टैन डायग्राम है, किसके लिए? एल्यूमिनियम. और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टैन डायग्राम ऑफ द स्टील के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये स्टील के लिए है, ये स्टील के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. यस या नो? क्या नहीं क्या? यस सर. सो ये तुम लोगों को डिफरेंस मतलब व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस टू डायग्राम सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज द स्टैन डायग्राम of the aluminium also. So here difference is showing that difference ये show करता है कि there is a no yielding point in the, कोई yielding point नहीं होता है, यानी कि yielding बहुत ज़्यादा yielding is very less in case of the aluminium. aluminium में yielding बहुत कम होती है, जैसे कि यहाँ पे yielding हो रही थी, यहाँ पे yielding बहुत कम होती है. Secondly ये क्या है कि ये जल्दी क्या है, मतलब ब्रेक तो खैर लगभग लोड तो ज़्यादा बियर कर रहा है, यानी स्टैसिस it sustaining more stresses as compared to the steel, but इसका जो वेरिएशन है वो यहाँ पर शो करेगा. there is a no yielding, it directly breaks, यानी कि प्लास्टिक जोन में नहीं जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि डक्टिलिटी होगी उसमें, यील्ड होगा, लेकिन प्लास्टिक जोन में जाने से यानी पहले फेल हो जाएगा, जैसे कि स्टील में होता था, वैसे नहीं है. सो दिस इज द
इसका ये एल्यूमिनियम का क्या है तुम्हारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। थोड़ा ये डिफरेंस थोड़ा समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। इसमें जो स्ट्रेन हार्डनिंग यानी कि यील्डिंग जो है यहाँ पे मतलब लगभग जब यील्डिंग का पॉइंट है तब ये ब्रेक हो जा रहा है, तो यील्डिंग और ब्रेकिंग पॉइंट जस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 0.2% ऑफ इस कंडीशन पर हम यील्डिंग पॉइंट निकालते हैं। जो व्हेन वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील, सो आई हैव टोल्ड यू दिस टर्मिनोलॉजी। सो अगेन यानी कि दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन diagram of steel, sorry, aluminium. Now we will move the further classification of the aluminium. So major classification of the aluminium are two, यानी कि wrought aluminium alloy and aluminium casting alloy. अब wrought aluminium alloy क्या है? These are the यानी कि the aluminium alloy which show the property of high ductility, यानी कि which are the ductile material are come under the category of the wrought aluminium alloy. बट सम एल्यूमिनियम alloy ऐसे भी हैं, यानी कि दे आर सम एल्यूमिनियम alloy विच डज नॉट एग्जिस्ट और विच डज नॉट शो द एनी डक्टाइल प्रॉपर्टी, यानी कि दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर इन ब्रिटल इन नेचर कि व्हेन वी आर अप्लाइंग द लोड ऑन दैट एल्यूमिनियम, यानी कि जो हम कास्टिंग से एल्यूमिनियम alloy बनाएंगे उनमें क्या होगी, डक्टिलिटी की होगी बहुत ज़्यादा लेस होगी, वो यानी नेग्लिजिबल जीरो के लगभग होगी। they will be just like treated as the cast iron alloy, जैसे कि स्टील है और कास्ट आयरन है, both are the alloy of the iron, yes or no? Yes sir. both are the alloy of the iron ना, आयरन के तो alloy है, एक स्टील है और एक हमारे पास कास्ट आयरन है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ द आयरन, यानी उसमें आयरन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशन हो रहा है। सो जब व्हेन द कार्बन परसेंटेज जो 2% से ज़्यादा हो जाता है, यानी 4 या 4.5 या 6 के आसपास हो जाता है, यानी कि हाई कार्बन परसेंटेज हो जाता है, तो दैट्स कम अंडर द कास्ट आयरन एंड कास्ट आयरन हैज द जीरो डक्टिलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यस या नो, दे आर ब्रिटल इन नेचर। अरे यस या नो वी हैव डिस्कस ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो सिमिलरली यहाँ पे दे आर, यानी कि ऐसा नहीं कि ऑल द एल्यूमिनियम alloy हैव द डक्टिलिटी, सारे एल्यूमिनियम alloy जो है डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं, दे आर सम एल्यूमिनियम alloy which are manufactured by the casting process, which are manufactured by the casting process and they show only the brittleness property, they show the only brittleness property as it has shown, यानी कि ये तो जनरल समझ में आएगा कि wrought एल्यूमिनियम alloy है, wrought एल्यूमिनियम alloy वो होंगे which show the ductile property, यानी कि which can be formed in the form of the wire sheet, जिसकी फॉर्म में हम बना सकते हैं, but there are some alloy which does not show the any ductile property, यानी कि if we are applying the force they can easily break, no deformation will take place, no elongation, no deformation will take place when we apply the load, they will sustain the load, but whenever they, यानी कि when the load will increase their लिमिटिंग कंडीशन, उसकी जो उसकी सस्टेनेबिलिटी लोड से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दे कैन इजीली ब्रेक, बट देयर नो डिफॉर्मेशन। गेटिंग दिस पॉइंट और नोट? क्लियर है भी सबको? ये आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? Yes sir. सो यानी कि दीज आर द यानी कि ये क्लासिफिकेशन है। अब ये टेक्निकली कैसे डिफाइन करना है कि रोट एल्यूमिनियम alloy, कास्ट alloy, जनरली इनको हम रोट एल्यूमिनियम alloy और कास्ट एल्यूमिनियम alloy आल्सो नोन, दीज आर आल्सो नोन एज सो यहाँ पे अभी है तो हमें समझ में आ गया कि रोट एल्यूमिनियम alloy क्या है, इट एग्जिबिट और शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डक्टाइल नेचर, दे आर डक्टाइल इन नेचर, एंड कास्टिंग alloy they are brittle in nature, and further they has been shown to here, यानी कि they are further जो है टेक्निकली कोड, their technically code has been shown here कि how they, जो तुम्हारा कि ऐसे आई एम सेइंग कि जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है 110, यानी कि देयर इज अ 1, ये है तुम्हारी 1 सीरीज है तुम्हारी, विच सीरीज है तुम्हारी 11 सीरीज है। अब 11 सीरीज क्या है तुम्हारी, यहाँ पे देखो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई हैव आल्सो शोन हियर, देखो 1F सीरीज ये तुम्हारी ये सीरीज है। अब ये क्या है, अभी आई विल डिस्कस दैट। ये है कि तुम्हारी ये तुम्हारी 7X सीरीज है, यानी कि ये 7XXX सीरीज है। तो ये तुम्हारा एक टेक्निकली के दिस इज द, यानी कि इन सम बुक्स और इवन व्हेन यू विल बी मीट विद एनी एक्सपर्ट, जब तुम किसी एक्सपर्ट से मिलोगे हु इज द एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ द मटेरियल साइंस, सो ही विल नेवर टोल्ड यू कि वो क्लासिफिकेशन में बताएगा रोट और ये तुम्हारा कास्ट कभी नहीं बताएगा। ही विल नेवर टोल्ड यू दीज थिंग्स, ओनली ही विल टोल्ड यू ग्रेडिंग सिस्टम जानते हैं, दे नो द ग्रेडिंग सिस्टम कि ये
इन विच ग्रेडिंग सिस्टम दे आर लाइंग, यानी इनकी टेक्निकली कोडिंग क्या है, दे एक्सपर्ट ओनली नो अबाउट द कि आदर दे विल कम इन द 1 ट्रिपल एक्स कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, 2 ट्रिपल एक्स कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, 3 ट्रिपल एक्स कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, 4 एक्स कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये दीज आर द टेक्निकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोट एल्यूमिनियम अलाय। रोट एल्यूमिनियम अलाय की जो डेफिनेशन मैंने बताई है उससे कोई नहीं बताएगा तुम लोगों को, वो तो मैंने तुम लोगों को बताई है सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बट दे आर यानी कि एल्यूमिनियम एलॉय और जनरली क्लासिफाइड बाय दिस टेक्निकल कोड। बात समझ में आ रही है? दे आर नॉट क्लासिफाइड के दीज आर द रोड एल्यूमिनियम एलॉय, दीज आर द कैस्ट एल्यूमिनियम एलॉय ऑन द बेस, ये वैसे क्लासिफाई नहीं किए जाते हैं। हियर यू कैन सी के दीज आर द कास्टिंग एलॉय एंड रोड एल्यूमिनियम एलॉय, but they are generally classified on the basis of their technical coding, and technical coding जो है तुम्हारी this is the series, 1 triple X series है, 2 triple X series है, 3 triple X series है, यानी कि टेक्निकल सीरीज की बेसिस पे एल्यूमिनियम एलॉय आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निकल कोडिंग स्कीम। क्लियर? क्लियर भाई टू एवरीवन? Yes, sir. यानी कि यू विल नॉट यू डिड नॉट गेट एनीवेयर, यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक होगी उसमें तुम कोई भी नाम, यानी कि कोई भी नाम नहीं होगा, उसमें सिर्फ होगा 2 ट्रिपल एक्स सीरीज, 3 ट्रिपल एक्स सीरीज। अब तुम उसमें ढूंढते रहोगे 3 ट्रिपल सीरीज में क्या होता है, बट फॉर सो दैट के यू विल बी गेट द आइडिया आई हैव टेकन दिस, यानी कि जैसे कि आई एम सेइंग कि 1 ट्रिपल एक्स सीरीज का हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है। ये तुम्हारा 1 यानी कि 1 पहला नंबर है, बाकी आगे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 ट्रिपल एक्स सीरीज का एग्जाम्पल है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1 ट्रिपल एक्स सीरीज, यस या नो? Yes, sir. यानी कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द 1 ट्रिपल एक्स सीरीज का एग्जाम्पल है। उसके बाद आई एम सेइंग कि ये मैंने 6 यानी कि 6 ट्रिपल एक्स सीरीज का ये एग्जाम्पल है। सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज द ट्रिपल एक्स सीरीज का क्या एग्जाम्पल होता है। सो वन एग्जाम यानी कि वन एग्जाम्पल हैज बीन शोन हियर। और कास्टिंग एलॉय के जो होता है इसमें ये 1x ट्रिपल एक्स कोई सीरीज नहीं होती है, दे हैज बीन technically categorized only on the basis of the 3-digit number. They are categorized on the 3-digit number की basis पे they have been categorized किए जाते हैं। उनकी वो उसमें यानी कि 1 ट्रिपल एक्स सीरीज नहीं होती, they consist only 3-digit number. they यानी कि they consist only ट्रिपल एक्स सीरीज only. ट्रिपल एक्स सीरीज है, इसमें ट्रिपल एक्स सीरीज में यानी कि पहला नंबर जैसे कि 1 डबल एक्स आएगा, 1 डबल एक्स आ गया, 2 डबल एक्स आ गया, यस या नो? ऐसी तो होगा भी कास्टिंग वाला है। 3 ट्रिपल एक्स आ गया, सॉरी डबल एक्स आ गया, जैसे 3 डबल एक्स का ये एग्जांपल आ गया, यस या नो? बताओ भाई। Yes, sir. और ऐसी तुम्हारा 4 डबल एक्स का, यानी कि कास्ट एलॉय हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रू, यानी कि 1 न्यूमेरिकल डिजिट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद ट्रिपल एक्स, एंड कास्ट एलॉय हैज बीन कैटेगराइज्ड 1 डिजिट नंबर एंड आफ्टर 2 यानी कि 2 कुछ भी हो सकते हैं उसमें, ये लास्ट 2 डिजिट यानी कि लास्ट 3 डिजिट इन दिस केस ऑफ द रोट एलॉय ये तुम्हारे अलग अलग परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो समझ में आएगा तुम्हारे टेक्निकल सीरीज के बारे में, यस या नो? बताइए भाई। Yes, sir. आ गया। अब जैसे कि हम बात करते हैं 1 ट्रिपल एक्स क्या है तुम्हारा, यानी कि इट इज गिवन इन द ऑल द मोस्ट ऑफ द जो स्टैंडर्ड बुक है इन गिवन इन 1 ट्रिपल एक्स सीरीज। सो हियर इट इज सेइंग दैट कि इन 1 ट्रिपल एक्स सीरीज में जो होता है एल्यूमिनियम 99% होता है। कितना होता है अभी एल्यूमिनियम? 99%. यानी कि इफ आई एम सेइंग कि ये तुम्हारा जैसे कि 1 यानी कि दिस इज द एग्जांपल, यानी 1100 इज द एग्जांपल ऑफ 1 ट्रिपल एक्स सीरीज। सो इन दिस पर्टिकुलर एलॉय यानी कि इसमें 1 इज जे तुम्हारा जो 1 ट्रिपल एक्स सीरीज का जो एग्जांपल हैज बीन गिवन हियर, इसमें क्या होगा तुम्हारा मिनिमम जो होगा वो 99% एल्यूमिनियम होगा, बाकी रेस्ट में 1% में 1 से कम परसेंट में और कुछ होगा। जैसे कि हेयर इट हैज बीन शोन हियर, इसमें मिनिमम 99% एल्यूमिनियम है, बाकी ओनली 0.12% कॉपर है। सो 1 ट्रिपल एक्स विल एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज को ज्यादा शो करेगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली जैसे कि आई एम सेइंग कि ये जैसे कि आई एम सेइंग कि हमारा ये 7 यानी कि 7 ट्रिपल एक्स सीरीज है। सो 7 ट्रिपल एक्स सीरीज क्या है, इसमें क्या होगा एल्यूमिनियम तो होगा इन दिस ट्रिपल यानी कि 7 ट्रिपल एक्स सीरीज में एल्यूमिनियम तो होगा ही होगा, बट क्या होगा तुम्हारा जिंक भी इसमें प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जिंक भी इसमें क्या रहेगा भाई?
परसेंट रहेगी, परसेंट यानी जिनकी क्वांटिटी भी यानी कि 4 to 5% होनी चाहिए कम से कम, यानी कि वैरी तो वैसे मिनिमम जो होती है वो 2 से लेकर 10 तक भी हो सकती है। 2 से लेकर कितनी हो सकती है भाई? 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। कितनी होती है मिनिमम? यानी 2 से लेकर 10 तक हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 1% भी हो सकती है। सो जिसमें क्या होगा तुम्हारा कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट, यानी कि इफ़ आई एम सेइंग कि आई हैव ए एल्यूमिनियम एलॉय, यानी कि ये क्लासिफिकेशन जो बने हैं ये बनी है जब व्हेन वी आर मैन्युफैक्चर द डिफरेंट एल्यूमिनियम एलॉय, यानी कि हमने एल्यूमिनियम एलॉय बनाए, उसमें हमने कॉपर को ऐड किया, मैग्नीशियम को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग कि हमने सपोज करो कि फॉर एग्जांपल के जैसे कि हम 7SSS की सीरीज की बात कर रहे हैं, इसमें हमने जिंक को ऐड किया, 4% जिंक ऐड किया, 2% मैग्नीशियम ऐड किया, 1% कॉपर ऐड किया, बाकी इसमें क्रोमियम ऐड किया। सो ऐड करने के बाद वी हैव डेवलप, यानी कि जब उसको हमने नहीं किया, साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग्स, यानी जो रिसर्चर है R&D में काम कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी डेवलप दिस एल्यूमिनियम एलॉय। पहले तो एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हुआ, आफ्टर दैट इन्वेंशन हुआ, आफ्टर दे हैव इन्वेंटेड द डिफरेंट एल्यूमिनियम एलॉय। उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया गया माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, उनकी प्रॉपर्टीज को जो है एनालाइज किया गया, and after that they have found that these alloy has the superior property as compared to the pure aluminium alloy, or we can say that they can be used at this particular position, yani कि they can be if we are using this particular type of aluminium alloy, so this is giving the tremendous life, it is giving the exterior tremendous properties at that particular application। यानी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग एल्यूमिनियम एलॉय को हम यूज़ करते हैं, बिकॉज दे एग्जिबिट और दे शो द एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं, दे गिव्स देयर बेस्ट आउटपुट। अब ये यानी कि 7SSS सीरीज में यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जस्ट मेरा यहाँ पर पर्पस ये है इस बताने का कि इट कंसिस्ट द, यहाँ पे जिंक की परसेंटेज तुम्हारी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अदर मेटल। और इफ वी आर टेकिंग के 2SSS सीरीज की बात कर रहे हैं हम, यानी कि जो 2SSS सीरीज होगी, कोडिंग होगी यहाँ पे एज इट हैज बीन गिवन, यानी कोई एग्जांपल नहीं है, ये है 2SSS का ये एग्जांपल यहाँ पे है। सो इन दिस यानी कि इट कंसिस्ट द मेजर क्वांटिटी ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम तो है ही है, इसमें क्या तुम्हारा देख रहे हैं कि वी आर जनरली वी आर सीइंग हियर, यानी कि एक एग्जांपल है, ये तो 2024 है, एक एग्जांपल है। 202 सीरीज की बहुत सारे एग्जांपल होंगे, यस के नो? अरे यस नो बताइए। अरे 2SSS सीरीज के नंबर ऑफ एग्जांपल होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे। यस सर। So one example has been shown here. So in one example it has been shown here कि 2024 में जो तुम्हारा कॉपर की परसेंटेज जो 4.4 है, तो यानी कि कॉपर की परसेंटेज भी है, इट यानी कि इट कंसिस्ट द अदर एलॉय, यानी इसमें एल्यूमिनियम के अलावा जो मेजर क्वांटिटी में जो हमने इसमें अलाया है उसमें किसकी परसेंटेज ज़्यादा? कॉपर की ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है यार? सिंपल सी बात है। अगर ये 2SSS सीरीज होगी तो इसमें कॉपर की परसेंटेज यानी एल्यूमिनियम के अलावा एल्यूमिनियम फर्स्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो एल्यूमिनियम की होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे किसकी परसेंटेज होगी भाई? कॉपर की। और अगर सेकंड में मैंगनीज की ज़्यादा है तो वो SSS सीरीज में आ जाएगा, और अगर सेकंड में उसमें किसकी ज़्यादा है? तुम्हारी जिंक की ज़्यादा है तो 7SSS सीरीज में आ जाएगा। मैग्नीशियम और सिलिकॉन की ज़्यादा है तो 6SSS सीरीज में आ जाएगा। मैग्नीशियम की ज़्यादा है तो 5x में आ जाएगा, सिलिकॉन की ज़्यादा है तो 4x में आ जाएगा। सो दीज आर द फर्दर यानी कि ऑन द यानी कि आफ्टर यानी कि अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये तुम्हारे इस कैटेगरी में आ रहा है। यस या नो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही यहाँ तक? ये बताओ। यस सर। ओके, उसके बाद इसके यहाँ पे इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह, यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह ये दे रखी है, और इनके एप्लीकेशन दे रखे हैं, इनके वे आर दे आर यूजेस कि इनके एप्लीकेशन क्या है। सो एप्लीकेशन आर आल्सो गिवन है। सिमिलरली ये तुम्हारा कास्टिंग वाला है, तो इनकी जो कोडिंग होती है वो 2XX से होती है। सो 2XX में अगेन यहाँ पे भी यही होगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको एलोबरेट नहीं किया गया है इन दिस, यानी कि एलोबरेट नहीं किया, यानी एल्यूमिनियम के अलावा इसमें यानी कि अगर ये 5x सीरीज है, यानी कि 5x सीरीज में सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पे सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा है, सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा है, यानी इनमें जो होती है वी आर सीइंग इन ईच वन, इसमें सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। बिकॉज वाई इट यानी कि सिलिकॉन की परसेंटेज क्यों ज़्यादा है? एनीवन टेल मी, सिलिकॉन की परसेंटेज क्यों ज़्यादा है भाई? कोई बताएगा भैया?
why the casting aluminium alloy has यानी कि have the more percentage of silicon as compared to the some other alloying element. बताइए भी कोई क्यों ज़्यादा है? कि डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन परसेंट, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द, ये जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द सिलिकन परसेंटेज है. एज वी आर सीइंग कि यहाँ पे जैसे जैसे सिलिकन की परसेंटेज बढ़ रही है इसकी रेटिंग बढ़ रही है. ये से नो Yes, sir. तो सिलिकन की परसेंटेज ज़्यादा का मतलब ये है कि सिलिकन क्या करता है, एक्चुअली क्या है, सिलिकन इज ए ब्रिटल मटेरियल. सिलिकन क्या है तुम्हारा ब्रिटल मटेरियल है. इसको हम कास्ट यानी कि इट एग्जिबिट्स और इट शो द ब्रिटल यानी कि ब्रिटल प्रॉपर्टीज शो करता है. और व्हेन वी ऐड दिस सिलिकन इन द एल्यूमिनियम, सो आफ्टर मिक्सिंग विद एल्यूमिनियम, एलॉय तो मिक्स तो होगा ही उसके अंदर लिक्विड स्टेट में, यस नो, मिक्स होगा नहीं होगा भाई? Yes, sir. होगा मिक्स. तो मिक्स हो गए. आफ्टर मिक्सिंग विद एल्यूमिनियम, एक तो ये ब्रिटल था, ये और ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है. सो नाउ द एलॉय विच वी आर गेटिंग, यानी कि आफ्टर यानी कि व्हेन वी आर मिक्सिंग द सिलिकन विद द एल्यूमिनियम, आफ्टर मिक्सिंग विद एंड जो एलॉय बना, सो इट विल एग्जिबिट और इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस नेचर. ब्रिटलनेस नेचर की ये प्रॉपर्टी शो करेगा. और इसको जो हम जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कास्टिंग जो प्रोसेस होते हैं, सैंड कास्टिंग, परमानेंट कास्टिंग, डाई कास्टिंग, दीज आर द डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस. तो ये इनके कास्टिंग प्रोसेस दे रखी कि बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग, यानी कि दिस कास्टिंग प्रोसेस वी कैन मैन्युफैक्चर दिस कास्टिंग अलॉय एंड देयर फर्दर एप्लीकेशन हैज बीन शोन हियर. देयर वही स्टेनलेस स्टील वगैरह सब दे रखी है यहाँ पे. सो these यानी कि these आर द टेक्निकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्यूमिनियम एलॉय. एल्यूमिनियम के एलॉय का ये टेक्निकल क्लासिफिकेशन है. यानी कि ये तुम्हारी एक तो 1 ट्रिपल एक्स सीरीज हो गई, दूसरा कास्टिंग एलॉय. रोट एलॉय और कास्टिंग एलॉय इन टेक्निकली वे में कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, आई हैव टोल्ड यू. एंड अगर आई एम सेइंग के अगर तुमसे इन द एग्जाम इट विल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड के राइट द, यानी कि राइट एनी यानी कि राइट द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ 4 ट्रिपल एक्स सीरीज. 4 ट्रिपल एक्स सीरीज के एप्लीकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए. सो आप क्या लिखेंगे भाई बताइए? व्हाट विल यू राइट देयर? मैं कोई भी कुछ भी मालूम कर सकता है, कोई भी, यानी 2 ट्रिपल एक्स भी कर सकता है, 4 ट्रिपल एक्स भी कर सकता है. पर आई एम सेइंग कि इन द एग्जाम इफ इट इज कमिंग कि 5 ट्रिपल एक्स के जो है तुम जो है प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए और इसका एग्जाम्पल दीजिए. तो क्या बताओगे इसका एग्जाम्पल? एनीवन? प्रॉपर्टीज बताओ पहले. तो क्या बताओगे प्रॉपर्टीज? सर पहले तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे. ओके, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे. साथ में इसमें मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नीशियम और क्रोमियम है सर. हाँ, यस सर, वो भी ऐड कर वो देंगे. ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सीरीज का. 5 सीरीज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है. इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं. एप्लीकेशन तो सभी की सभी जगह होती है, मतलब ये एप्लीकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज जो है तुम किसी के भी बारे में लिख सकते हो. देयर इज नो नीड कि तुम्हें सारे पढ़ाने की, देयर इज नो रिक्वायरमेंट. ये एक बता दिया टेक्निकल तरीका, मैंने तुम लोगों को बता दिया कि हाउ यू कैन डू दिस. तो देयर इज नो नीड. ये फर्दर फ्यूचर में भी याद रखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बट यू विल जस्ट, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अगर ये 5x सीरीज है, 4x सीरीज है, तो मेजर क्वांटिटी में इसमें क्या है ये तो पता होना चाहिए. अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो टेक्निकली टेक्नीशियन होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, दे नो दिस टेक्निकली टर्म को जानते हैं कि इसमें क्या है और उसके बेसिस पे वो प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दिस इज अबाउट द कॉपर एंड इट्स एल्यूमिनियम एंड इट्स टेक्निकल क्लासिफिकेशन. नाउ इन योर सिलेबस 2 अदर क्लासिफिकेशन आल्सो देयर. Just first one is the duralumin and second one is the Y alloy. So what is the duralumin? Duralumin जो है तुम्हारा, it is also the alloy of the copper. इसका टेक्निकल नाम, इसको मतलब नाम दिया गया है duralumin. And this is the first, यानी कि सबसे पहले जो एल्यूमिनियम alloy का डिस्कवरी हुई थी, this is the oldest one. This is the oldest one with oldest one, यानी सबसे पहले इसी का इन्वेंशन हुआ है तुम्हारा. एल्यूमिनियम के एलॉय में सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ है? 2017 का हुआ है. इसका टेक्निकल नाम क्या तुम्हारा? 2017 है. सो दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 2 ट्रिपल एक्स सीरीज. कॉपर का है ये? Yes, नहीं sir. है कॉपर Yes, का है sir. ये कॉपर का है, बिकॉज 2 ट्रिपल एक्स सीरीज जो तुम्हारी कॉपर को रिप्रेजेंट करती है. तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम कॉपर भी होगा नहीं होगा मेजर क्वांटिटी में? यस Yes, sir. होगा. तो इसमें यही तो शो कर रहा है यहाँ पे. ये एल्यूमिनियम इसमें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ऐसा नहीं है इट कैन वेरी.
ये जो मैंने कंपोजिशन लिखा है ये इट कैन वेरी, बट आई हैव टेकन दिस कंपोजिशन फ्रॉम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो मैंने ये लिया है, एंड आई हैव टेकन दिस, ये तुम्हारा ये जो मॉरिसन मॉरिसन नहीं, कौन सी बुक है, हाँ सिडनी एच एबनर की बुक है, वो तुम मटेरियल्स एंड मेटलर्जी की बुक आती है, उससे मैंने लिया है। सो वो स्टैंडर्ड बुक है, यानी कि फॉरेन ऑथर की बुक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, बट सम इंडियन बुक यू कैन फाइंड आउट दिस डिफरेंट भी हो सकता है, यानी कि दे कैन गिव द एल्यूमिनियम परसेंटेज 94 भी हो सकता है, 96 भी दे सकते हो, 93 भी हो सकता है। मेजर क्वांटिटी में तो एल्यूमिनियम रहेगा, बट इट कैन वैरी हो सकता है ना, यानी कि 201 से भी लिया मैंने, वो हो सकता है 2018 ले लें या कुछ और ले लें। सो और कॉपर की परसेंटेज क्या 4%, तो हेयर यू आर सीइंग और यू आर एनालाइजिंग दैट कि आफ्टर एनालाइजिंग दैट यू विल बी फाउंड आउट कि दिस इज द 2 XXX सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इट कंसिस्ट द मेजर क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम कॉपर की है इसमें। यस या नो, बताइए। यस सर। यस सर। और हाफ क्वांटिटी में यानी कि 0.5% इट कंसिस्ट द मैंगनीज एंड 0.5% इट कंसिस्ट द मैग्नीशियम। सो नाउ दिस ड्यूरेलामीन का जो तो हमारा इन्वेंशन हुआ है तुम्हारा, एंड इसका एप्लीकेशन जो तुम्हारा इसका मोस्ट वर्सेटाइल, बिकॉज आई हैव टोल्ड कि दिस इज द ओल्डेस्ट मटेरियल, ओल्डेस्ट एलॉय ऑफ द एल्यूमिनियम व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, एंड इस मोस्ट वर्सेटाइल एप्लीकेशन इज द एरो, यानी कि एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इज यानी कि अब तो थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, स्टिल दिस ड्यूरेलामीन इज यूज इन द एल्यूमिनियम, यानी कि इन एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका भी यूज़ किया जाता है, बट ये कि थोड़ा एडवांस कर दिया इसको। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है तुम्हारी कि ये एज हार्डनिंग ऑफ ड्यूरेलामीन इज डन एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर फॉर 4-5 डेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। एज हार्डनिंग क्या है, मुझे यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि व्हाट इज द एज हार्डनिंग। एज हार्डनिंग इज डन एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। तो एज हार्डनिंग अगेन इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। एज हार्डनिंग क्या है हमारा, ये हीट हीट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसको हम प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग भी कहते हैं। इसमें हम प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या कर रहे हैं हम इसमें, प्रेसिपिटेट यानी कि इसका यह है कि हम प्योर एल्यूमिनियम को, वी आर कन्वर्टिंग द प्योर एल्यूमिनियम इनटू द ड्यूरेलामीन। अब ड्यूरेलामीन में जब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम कॉपर को उसमें ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर एडिंग द कॉपर एंड सम क्वांटिटी ऑफ मैंगनीज एंड मैग्नीशियम आल्सो। यस या नो, यस या नो। यस सर। एज हार्डनिंग का तो मतलब यही है। एज हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ एल्यूमिनियम को उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ। सो इसकी जो एज हार्डनिंग करने में, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने में 4-5 डेज लगते हैं, यानी प्योर एल्यूमिनियम को ड्यूरेलामीन बनाने में कितना टाइम लगता है भाई, 4-5 डेज लगते हैं। सो लॉन्ग टाइम है। यस या नो। यस सर। और ये तुम्हारा जनरली ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे, यानी कि पहले हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो है Yes. उसमें कॉपर को ऐड करेंगे। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं, हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग। तो कूलिंग जो है करेंगे अप टू ये रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे की जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एज हार्डनिंग अगेन क्या है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। और बट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको, और बिकॉज स्टील के लिए हम इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे थे, बट हियर क्या है, वी आर इनहेंसिंग द प्रॉपर्टी। यानी सपोज को हमने ड्यूरेलामीन डेवलप कर लिया, लिक्विड स्टेट में डेवलप करने के बाद उसको हमें उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, सो दैट कि वी कैन यूज दिस ड्यूरेलामीन इन द एल्यूमिनियम इन द एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या रिक्वायरमेंट होती है, एरोप्लेन की अगर हम बॉडी बना रहे हैं या जो ऑटोमोबाइल की बॉडी बना रहे हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई बताए मुझे। उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए। यस या नो। सर लाइट वेट और यस सर। और लाइट, वो लाइट वेट तो है ही, एल्यूमिनियम में तो strength. लाइट वेट बिकॉज दिस इज द एल्यूमिनियम, वो तो ठीक है। बट अगर और हम प्रॉपर्टीज देखें, सो इट बी यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट कि अगर उसमें हम एयर फोर्स लगाएं, दोनों इन बोथ द केस, अगर वो एरोप्लेन है या तुम्हारा ऑटोमोबाइल है, बोथ द केस जो तुम्हारा एयर ड्रैग लगता है, एयर फोर्स लगता है, जैसे नो एयर प्रेशर लगता है, सो इट विल बी Yes, sir. एबल टू सस्टेन दैट अमाउंट ऑफ द फोर्स। और वो क्या है तुम्हारा, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी, यानी कि इट बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल, यानी कि इज अ वेरी स्मॉल थिकनेस शीट। ये तुम्हारा बहुत स्मॉल थिकनेस शीट है, कोई ये हाई थिकनेस की शीट तो है नहीं। ये से नो। यस सर। सो उस शीट को हम क्या कर रहे हैं, उसको हार्ड कर रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग द 4-5 डेज। तभी तो इसको 4-5 डेज लग रहे हैं। बात समझ में आ रही?
यस सर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं और इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ऐसे कर रहे हैं उसमें कि उसकी स्ट्रेंथ यानी कि इतनी यानी कि स्मॉल थिकनेस की शीट में उसकी हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं, कॉपर को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, क्या मैंगनीज को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीशियम को डिफ्यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसको करने में लॉन्ग टाइम इसलिए लग रहा है सो दैट वैन भी अप्लाई, अगर हम एक दिन में करके उसको लगा दें, हो सकता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर ना ही हो कि वो लगा दिया हमने एरोप्लेन पर, चला एरोप्लेन की जो शीट है फट गई तो क्या होगा, एरोप्लेन तो क्रैश हो जाएगा। ये Yes, सुनो, sir. बिकॉज एरोप्लेन इज यानी कि एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन जो है दीज आर द वेरी सेंसिटिव डिवाइसेस, these are the very sensitive devices and they will be tested several times before taking off होने से पहले उस कई बार उसके इंस्पेक्शन किए जाते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई किसी पर्टिकुलर पोर्शन में। अगर किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में पोर्शन आ गई तो इट विल क्रैश द थ्रू आउट द एरोप्लेन। सो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कि दीज आर द मोस्ट सेंसिटिव थिंग्स। सो मोस्ट सेंसिटिव एंड इट इज़ मेड ऑफ द ड्यूरेलामीन का बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज मेड ऑफ द ड्यूरेलामीन। सो जब ड्यूरेलामीन का मोस्ट ऑफ द पार्ट बना हुआ है तो उसकी हम सही से उसकी स्ट्रेंथनिंग और हार्डनिंग करेंगे नहीं करेंगे, ये से बताइए। यस सर करेंगे। अगर बिकॉज इट कैन बियर द, यानी उसकी लाइफ में क्या हो, वैन भी अप्लाई द उसमें जब प्रेशर लगे, एयर फोर्स लगे तो इजीली दे कैन सस्टेन, वो इसको इजीली सस्टेन कर लें और वो अपना जो है जो भी लाइफ टाइम उसको कंप्लीट करें। सो ये तुम्हारा ड्यूरेलामीन है और इसके एप्लीकेशन जो है तुम्हारे यहाँ पे दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज़ तो वही है तुम्हारी, जो थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ इनहेंस हो जाती हैं। सो ड्यू टू द एडिशन ऑफ द यानी कॉपर को अगर हम ऐड कर देते तो थर्मल कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बियर रेजिस्टेंस और इंक्रीज कर जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाएंगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी। सो बाय एडिंग द कॉपर यानी कि दीज आर द सम मेजर एडवांसिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर एल्यूमिनियम। एप्लीकेशन हैज़ बीन शोन है कि ये कहाँ पे इसका यूज़ किया था। इवन दो जो गन्स होती हैं, जो पिस्टल होती हैं, उसमें भी हम लोग जो है तुम्हारा उस पिस्टल में भी जो माउजर होते हैं, जो पिस्टल होती है उसमें भी तुम्हारा एल्यूमिनियम के इसका ड्यूरेलामीन का यूज़ किया जाता है। सम एप्लीकेशन हैज़ बीन शोन हियर। सो ये एप्लीकेशन तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, देयर इज नो नीड टू डिस्कस, वी विल मूव अहेड अबाउट द वाई एलॉय। तो वाई एलॉय अगेन इट इज़ द एलॉय ऑफ द एल्यूमिनियम। ड्यूरेलामीन के बारे में सबको समझ में आ गया? यू कैन राइट अबाउट द ड्यूरेलामीन, यस यू नो? सर Yes, sir. यानी कि वी आर एडिंग, यानी उसमें हमने कॉपर को ऐड कर दिया, उसमें उसको कुछ की प्रॉपर्टी से इनहेंस हो गई है। नाउ इन वाई एलॉय अगेन इट इज़ द एलॉय ऑफ द एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम, और इसमें कॉपर तो है ही, बट इसमें क्या हमने इसमें क्या रहता है, इसमें निकिल को ऐड कर दिया जाता है। निकिल इसमें यानी कि जो हमारा ड्यूरेलामीन बना था, यानी कि ड्यूरेलामीन विच वी हैव जो हमने डेवलप किया था उसमें हमने निकिल को और ऐड कर दिया। तो नाउ इसका नाम ही चेंज कर दिया, साइंटिस्ट ने उसका नाम ही चेंज कर दिया ड्यूरेलामीन का। नाउ इट इज़ नोन एज द वाई एलॉय। व्हेन वी आर एडिंग द निकिल इन द ड्यूरेलामीन इट इज़ ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर कि इट इज़ द सुपीरियर एलॉय टू द ड्यूरेलामीन। तो ये ड्यूरेलामीन से ही बना है। ड्यूरेलामीन का फर्दर क्या तुम्हारा एक्सटेंशन है, यस या नो? Yes, sir. This is the further extension of the ड्यूरेलामीन। सो ड्यूरेलामीन का सुपीरियर बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी में और इन्हेंसमेंट करने के लिए वी हैव बीन एडिड निकिल को उसमें हमने ऐड कर दिया है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इट हैज़ बीन शोन हियर। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम। जो तुम्हारा ये है ना ड्यूरेलामीन का कंपोजिशन विच आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस, कंपोजिशन में भी समहाउ थोड़ा वेरी कर सकता है, बट जो मेजर एलिमेंट है वो तुम्हें याद रखने है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज है। बट इन केस ऑफ द वाई एलॉय 4 ऑप्शन हैज बीन, यानी कि दिस क्वेश्चन इन आस्क इवन द गेट में भी पूछा गया है, इवन दो सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, इवन व्हेन यू विल बी कभी तो इंटरव्यू के लिए जाओ अगर कोई एल्यूमिनियम के इंडस्ट्री पे दे कैन आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन कि वाई एलॉय का कंपोजिशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर एल्यूमिनियम रहेगा, कॉपर रहेगा, निकिल रहेगा और मैंगनीज रहेगा। मैग्नीशियम रहेगा, मैंगनीज नहीं है बल्कि क्या तुम्हारा मैग्नीशियम है, और वहाँ पे मैंगनीज की जगह क्या निकिल आ गया है। सो वहाँ पे मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों होते हैं, यहाँ पे निकिल होता है। यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स कि व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वाई एलॉय में क्या क्या है। एल्यूमिनियम है, कॉपर है और निकिल है और मैग्नीशियम है। सो
दिस क्वेश्चन ये कभी कभी तो डायरेक्टली कंपोजिशन भी दे देता वो. This question I have seen कि this question has been asked several time in objective type question होते हैं कहीं भी कि when you will appear for the any public sector का एग्जाम जो तुम्हारा होता है, there are number of यानी कि तुम्हारे number of companies यानी public sector में जो तुम्हारी कंपनी है, ordinance हो गया तुम्हारा, और कौन सी है तुम्हारी ये कौन सी कंपनी तुम लोगों के लिए एग्जाम देती है? BHL हो गई, और तुम्हारी कौन सी कंपनी है? स्टील टाटा वो जिंदल हो गई, और तुम्हारी मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारी कंपनी के नाम. टाटा स्टील. टाटा स्टील तो है, और भी देयर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर और भी तो है. DRDO हो गया, तो मतलब देयर नंबर. इसरो. हाँ, इसरो हो गया. सो व्हेन विल बी बिकॉज ऑन द डिप्लोमा बेसिस यू आल्सो एप्लीकेबल फॉर द जूनियर इंजीनियर. यस यू नो यस सर. JEE के लिए. So if you are applying JEE, even though this question is asked several times in the UPSC जो JEE का एग्जाम होता है उसमें भी कई बार this question has been asked. So you are also eligible for that. Yes you know. यस सर. सर उसके SSC JEE में. हाँ, SSC JEE में वही तो कह रहा हूँ. SSC JEE में भी this question has been asked several times. So you must remember यानी why alloy dual amine का तुम्हें composition याद रखना पड़ेगा. So ये तुम्हारा फर्दर एक्सटेंशन है. किसका एक्सटेंशन है? यानी कि वी आर फर्दर यानी कि वी आर नाउ जो तुम्हारी द प्रॉपर्टी विच हैज बीन शोन बाय द ड्यूरेलामीन, जो ड्यूरेलामीन की प्रॉपर्टी थी उसको और हमने इनहेंस कर दिया है और उनको इंक्रीज कर दिया है बाय एडिंग द निकिल. निकिल के ऐड करने से उसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा और इंक्रीज हो गया. सो सम प्रॉपर्टीज हैज बीन एडेड यानी कि इट हैज द हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड फटीग एज कंपेयर्ड टू द ड्यूरेलामीन एंड प्योर एल्यूमिनियम. जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है, ड्यूरेलामीन की प्रॉपर्टी, they have also the property of the YLI, but some property has been shown here which are not shown by the duralamine as well as the pure aluminum. And यानी कि we can also use the YLI at high temperature. So it's mean यानी कि the YLI has the high melting point as compared to the duralamine as well as the pure aluminum. इसके यानी कि melting point में भी क्या हो गया अभी कुछ increment हो गया by adding the nickel. और can be heat treated and age hard यानी कि we can enhance its mechanical property by age hardening or heat treatment process as we have done in case of the duralamine. Duralamine के केस में हमने उसकी यानी कि प्रॉपर्टी बियर रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस को इंक्रीज किया था बाय एज हार्डनिंग प्रोसेस. सिमिलरली YLI में भी क्या कर सकते हैं हम, जितना हम उसकी ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट और एज हार्डनिंग करेंगे इट विल एग्जिबिट और शो द सुपीरियर प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू द ड्यूरेलामीन व्हेन वी परफॉर्म द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन दिस YLI. एंड इसका जो जनरली जो यूज़ किया जाता है तुम्हारा जो तुम्हारी ये इंजन की तुमने लोगों ने पिस्टन देखी है, पिस्टन. यस सर. सो इवन दो नॉट ओनली द पिस्टन ऑफ जो ऑटोमोबाइल होता है, जब तुम्हारा एरोप्लेन होता है उसमें भी इंजन होता है, तो उसमें भी पिस्टन होती है. पिस्टन हेड तो होते ही होते हैं. यस या नो, वहाँ पे इंजन नहीं होता क्या? सर उसमें तो सर टरबाइन होते हैं सर. हाँ, टरबाइन में इंजन नहीं होता है. टरबाइन में हेड तो होता है नहीं, इंजन सिलेंडर तो होता है नहीं, बस सिलेंडर तो उसका हेड तो बना होता है ना टरबाइन का, वो भी नहीं बना होगा. यस सर. यस सर होगा. तो जो टरबाइंस के जो यानी कि जो एयरक्राफ्ट जो इंजन के सिलेंडर हेड होते हैं उसमें भी तुम्हारा ये पिस्टन हेड, सिलेंडर हेड, पिस्टन, उसमें बिकॉज वहाँ पे क्या है कि जो इंजन वाले पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द इंजन, देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू सस्टेन द, यानी कि वहाँ पे भी हम एल्यूमिनियम का पार्ट यूज़ कर रहे हैं, हम प्योर एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ड्यूरेलामीन भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ scientist has discovered the more advanced alloy, that is the YLI. So when we are using the YLI in the piston or piston head, so उसका melting point I have already told you कि it has the superior, यानी कि इसका melting point increase कर गया है, तो वो इंजन सीज नहीं होगा. इसका melting point बनने से पिस्टन खराब नहीं होगा, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है इनसाइड द सिलेंडर रहेगा नहीं रहेगा, वहीं पे तो फ्यूल की बर्निंग हो रही है. यस सर. यस सर. अगर हम ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर लें या 4 व्हीलर लें, कोई से भी लें, तो बर्निंग ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर. एंड तो इंजन का जो सिलेंडर हेड है वहाँ पे जो मैक्सिमम हीट जो जाएगी वो मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर करेगा. यस या नो? यस सर. बिकॉज जो तुम्हारा जो कंबशन होता है, कंबशन विल टेक प्लेस व्हेन द पिस्टन इज एट जस्ट TDC पे होता है. तो सारी की सारी हीट जो वो पिस्टन जो हीट जो लिबरेट होती है बाय बर्निंग और कंबशन ऑफ द फ्यूल, by the burning and combustion of the fuel, the heat which is liberated, it will apply the force on the piston and we will get the power on the wheel of the engine. हमें इंजन से व्हील पे पावर मिलती है, कब मिलती है?
व्हेन द बाय द कंबशन, फ्यूल के कंबशन से हीट एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट थर्मल और हीट एनर्जी अप्लाई द फोर्स ऑफ प्रेशर ऑन द पिस्टन। यस या नो? यस सर। सो पिस्टन पे भी फोर्स अप्लाई करती है वो हीट, एंड एज वेल एज इट विल अप्लाई द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट वो तुम्हारा क्या है, स्टेशनरी है, वो जो है मूव नहीं कर सकता। सिलेंडर हेड पे भी जो है तुम्हारी हीट जो है स्ट्राइक करती है, बट वहाँ पे क्या वो स्टेशनरी है। बट हीट यानी कि थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी विच इज रिलीज बाय द कंबशन ऑफ द फ्यूल विल स्ट्राइक बोथ द पार्ट्स, सिलेंडर हेड एज वेल एज द पिस्टन, दोनों तरफ स्ट्राइक करती है। बट सिलेंडर हेड अगर तुम्हारा हाई अच्छे मटेरियल का बना हुआ है तो वो उस हीट को सस्टेन कर लेगा, बट जो है अगर हम उसको कम ताकतवर या कम ताकतवर मटेरियल का बनाएंगे तो वो क्या सस्टेन कर लेगा लॉन्ग टाइम तक? नहीं करेगा नो ना? सर, फट जाएगा। नो सर। हाँ, तो दैट्स वाई जो तुम्हारे इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंजन, यानी इंजन के जो इंटीरियर पार्ट हैं दैट आर मेड विद द वाई एलाई के बने होते हैं, यानी कि यानी वो पिस्टन हो, पिस्टन हेड हो, सिलेंडर की इंटीरियर पोर्शन हो, आउटर तो कास्ट आयरन का होता है, इंटीरियर पोर्शन हो तुम्हारा, वो तुम्हारा इंटीरियर में हम उसमें एल्यूमिनियम का जो है ये वाई एलाई लगा देते हैं, सो दैट के इट कैन सस्टेन द मोर अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर। सो क्लियर है कि ये तुम्हारा ज़्यादातर इसी में यूज़ किया जाता है, तुम्हारा इंजन, ये पिस्टन रोड, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है कि वेयर द हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो बाय द एडिशन ऑफ द निकल, यानी कि निकल के ऐड करने से इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एंड चेंजिंग आई हैव टोल्ड यू के चेंज के क्या फ़ायदे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग्स। सो these are the all about the aluminium and its alloy। तो सबको समझ में आया ना? या Yes, sir. क्लासिफिकेशन मैंने टेक्निकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग्स, एंड दे आर टू अपार्ट फ्रॉम द these are also the, ये तुम्हारे क्या है, तुम्हारे these are also the these are the classification of the aluminium, and it is specifically mentioned in your syllabus duralumin and why alloy, that's why I have told you these two alloy also. Remaining you have already study about the this thing so many times। सर ड्यूरेलामीन और वाई एलॉय के अलावा और भी काफ़ी सारे होंगे ना सर इसके एल्यूमिनियम के अलॉयज? हाँ, एल्यूमिनियम के अलावा, बट देयर इज नो नीड टू गो, उसकी ज़्यादा फर्दर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ओके सर। मैंने तुम लोगों को जो तुम्हारे सिलेबस में हुआ